has disclosed some astounding facts on the nature of manipulation that took place in Karnataka with respect to only one constituency. What do they tell you? It only tells you that there is a massive electoral fraud that is taking place in this country. In Maharashtra, it was addition of votes. In Karnataka and Delhi, that we know, it is manipulation of votes. And now it is in Bihar, it is deletion of votes. That's the kind of fraud that's taking place. And I believe that Rahul Gandhi has done yeoman's service to the nation for having placed these facts and had the courage to place these facts before the people of this country. Only a true patriot can do that. To have the courage to, by disclosing such facts, to inform the people of this country. For nobody else has a conscience, only the people of this country have a conscience. To tell them to wake up and to realize what's happening to our democracy and how the Election Commission has become an agent of the government in power. Otherwise, when these facts were disclosed, the Election Commission should have immediately said, we will have a full investigation into this, and we will then place these facts in the public domain. And if there has been any manipulation at such a large scale, and this only relates to one constituency, and I'm sure this will be replicated in other constituencies where elections took place, and to have one person have multiple votes in various constituencies and the same person voting in other states, I mean, and then all that the Election Commission does is to ask him to give an affidavit without application of mind. And they refer to Rule 20, Sub-Rule 3 of the Representation of People's Act of 1960. And let me tell you what that sub-rule says. Because I have the Act with me. Actually, it refers to when a draft roll is published and then a final roll is published, then objections, in between objections are invited. Right? कि आपकी सूची में अगर नाम है या नहीं है, अगर गलत है तो आप विरोध कर सकते हो, ऑब्जेक्शन दे सकते हो कि साहब इसको ये यहाँ रहता नहीं है, इसको इस नाम को काटना चाहिए, या ये नाम गलती से छूट गया है, इसमें डालना चाहिए उस ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में. तो वो सेक्शन जो है वो कहता है पीरियड फॉर लॉजिंग कंप्लेंट्स एंड ऑब्जेक्शंस. मतलब कि any such claim for the inclusion of a name in the roll and any objection to an entry therein shall be lodged within a period of 30 days. वो 30 दिन तो साल बीत गए, कई साल बीत गए, 30 दिन तो वो तो क्लेम बनता ही नहीं है. तो जैसे ही क्लेम फाइल होगा क्या साहब आपको तो 30 दिन बीच में आना चाहिए था. Then form of claims, every such claim for inclusion of name in the in the roll as new elector shall be in Form 6 signed by the applicant, and if any objection proposed of inclusion of name for deletion of a name in existing roll shall be in Form 7. वो तो ना Form 7(6) फाइल हुआ ना Form 7 फाइल हुआ, और आप कहते हैं आप एफिडेविट दीजिए. किस बेसिस पे एफिडेविट दें? वो तो कहेगा साहब आपने पहले इसको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया, इसका विरोध क्यों नहीं किया, अब मैं इसे किसको देख सकता हूं. फिर उसके बाद आता है प्रोसीजर फॉर डेजिग्नेटेड ऑफिसर. उसको किस तरह से उन्होंने रूल 14 कहता है मैनर ऑफ लॉजिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस. फिर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वो कैसे करेगा,
and it says any claim or objection is not lodged within the period herein, it shall be rejected. तो पीरियड में तो लॉज हुआ ही नहीं, तो रिजेक्ट करेगा ही, तो फिर एफिडेविट किस चीज का? मुझे तो मजाक हो गया। एक तो आप इस पे इसको नजरअंदाज करते हो, इसको गहराई से देखना नहीं चाहते, फिर राहुल गांधी को कहते हैं कि एफिडेविट फाइल करे, और उस प्रोसीजर से जबकि वो क्लेम हो ही नहीं सकता, तो वो 30 दिन में करना है। वो 30 दिन तो कई साल हो गए, बीत गए। मतलब कि अगर इलेक्ट्रल फ्रॉड हो रहा हो और उस 30 दिनों में आपको पता ना हो, तो उसकी कभी जांच हो ही नहीं सकती। इसका मतलब तो ये हुआ ना, अभी हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड है, इसमें कुछ लोग शामिल हैं। नेचुरली वही लोग शामिल होंगे जिस पार्टी के पक्ष में ये हो रहा है, वही लोग शामिल होंगे ना। और अगर ये फैक्ट्स जनता के सामने पेश किए हो तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत कहना चाहिए, रूल छोड़ो, मैं रूल में नहीं जाऊंगा, मुझे तो देखना है कि मेरी डेमोक्रेसी को किस तरह से खत्म किया जा रहा है। फिर तो हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन वाकई में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो कहते हैं कि आप जाकर वहां अपना एफिडेविट फाइल करो, और ऐसे रूल के अंतर्गत जहां कोई जांच हो ही नहीं सकती। ये अपने आप में मजाक हो गया ना। और जनता को बताएंगे कि राहुल गांधी को कहा गया है कि एफिडेविट फाइल करो, ये नहीं बताएंगे कि कभी वो कार्रवाई हो ही नहीं सकती, उसी 1960 रूल्स के अंतर्गत कार्रवाई हो ही नहीं सकती। तो ये तो एक मतलब के अब किया क्या जाए, सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। इलेक्शन कमीशन कोई जांच करेगी नहीं, ठीक है, कोर्ट इस पे नोटिस लेगी नहीं, इसके नोटिस ले नहीं। मैं तो सोचता हूं कि कोर्ट को भी सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, नोटिस लेगी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी से पास के कोई ऐसा साधन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि कितनी बड़ी धांधलेबाजी है ना। और उस 30 दिन तो बीत जाते हैं, तो कभी इसकी जांच नहीं होगी, तो फ्रॉड होता रहेगा, जांच होगी नहीं। और अगर राहुल गांधी एक वाकई में देशभक्त होकर ये बात जनता के बीच में लाएं, तो कहेंगे कि आप साहब एफिडेविट फाइल करो किसी रूल के अंतर्गत, हम इसमें वैसे जांच नहीं कराएंगे। तो अपने आप के मतलब कि लोकतंत्र का मजाक हो गया ना। तो मैं समझता हूं कि इलेक्टोरल पार्टीज को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और ये कहना चाहिए अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर हम काहे को चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि आप धांधलेबाजी करो, और धांधलेबाजी के बाद आप इलेक्ट हो जाओ कि फिर आपको जनता ने हमें इलेक्ट किया है, इस तरह से, इस फ्रॉड से जनता ने इलेक्ट किया है, और आपकी लेजिटिमेसी हो जाए, और फिर आप सरकार बना लो। तो अगर हर प्रदेश में ऐसे ही सरकार बनेगी तो फिर लोकतंत्र तो खत्म हो गया ना। तो मैं सोचता हूं कि कोई ना कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे जो सच्चाई है ये जनता के सामने रखी जाए, और जिन लोगों ने ये काम किया है और जिनकी साझेदारी है, जिनकी कंस्पिरेसी है, उनको उनका जो सिटीजनशिप है वो भी रद्द किया जाए। और आगे की बातें मैं कुछ दिनों में आपके सामने रखूंगा। अब I hope that the Election Commission takes us seriously, takes political parties seriously in this matter. बहुत बहुत धन्यवाद।